हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि है रिवीजन पार्ट। तो बच्चों, जो भी आपने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया है मैथ्स में, तो बच्चों आज हम उसका रिवीजन करने वाले हैं। एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर जो आपको इस पूरे सेशन में पढ़ाने वाली है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज ओपन योर बुक्स, टेक आउट चैप्टर नंबर 1 रिवीजन। ओके, so students, your first question is write each of the following in figures. So your first question is 7,03,009. Okay, so let's write students. 7,03,009. Okay students, so this is your answer. Next is 12,51,613. So 12,51,613. And similarly students, you have to complete this question, all the parts of this question. Okay, next question is write the number names for each of the following. So students, first answer is 57,309. So let's write 57,309. Okay, and students, let's do one more question. Question number C part करते हैं students, सबसे long दिखाई दे रहा है हमें ये. So your answer is 52 crores 49 lakhs 54,000 183. 183. Okay students, so this is your answer. And then rest of the parts you will do it by yourself. Now come to the question number 3 students, write in the expanded form. Okay, so your first answer is 10,000 plus 8,000 plus 300 plus 90 plus 5. Okay, so this is the expanded form, and similarly you will do all the questions. Now come to the question number 4 students, write in the short form. Okay, अब short form में लिखते हैं. So your answer is 54,894. Okay, and your second answer is students 1,87,516. 1,87,516 is your answer students. Okay, and similarly we will do rest of the parts. Now come to the question number 5, write the place value of each underlined digit. Okay, अब place value लिखनी है students. यहाँ पे 9 की place value 90 है, 0 की place value students 0 ही रहेगी, 5 की place value students आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 करोड़ है, सो 7 zeros आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so next is students. Okay, and similarly we will do rest of the parts. Now come to the question number 6, observe the pattern and fill in the blanks. So pattern observe करेंगे students, यहाँ पर 2 plus होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब नेक्स्ट नंबर में भी हम 2 plus कर देंगे, इट विल बिकम 8396. फिर से प्लस 2 करिए वंस प्लेस पे, it will become 8398, and again you have to plus 2, so it will become students 8400. Okay, now similarly we will do rest of the parts. Now seventh question is students, write in ascending order. Okay, ascending order में कैसे follow करना है students, smallest number बताइए यहाँ पर कौन सा है. So you will say that ma'am this number is the smallest, then greater than this number is
3,896 और इससे बड़ा कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स यहाँ पे 19,564 एंड इससे बड़ा नंबर स्टूडेंट्स 51,340 एंड द लार्जेस्ट नंबर हियर इज 62,358. Okay, so this is your answer and similarly you will do the second part. Now let's do the descending order students. तो सबसे बड़ा नंबर बच्चों यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है? I can see that 9,75,340 is the greatest. अब इससे स्मॉलर कौन सा है स्टूडेंट्स? 93,568. उससे छोटा स्टूडेंट्स 54,340. उससे छोटा कौन सा है बच्चों? 14,547 और उससे छोटा है बच्चों 11,342. ओके, सो ये आपका आंसर है. अब करते हैं बच्चों 9th क्वेश्चन. राइट ऑल द पॉसिबल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स ओनली वंस. ओके, अब पॉसिबल 3 डिजिट नंबर बनाने हैं बच्चों. कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर हमें ये नहीं बोला हुआ है कि ग्रेटेस्ट निकालना है या लार्जेस्ट निकालना है. हम अपनी मर्जी से पॉसिबिलिटीज यहाँ पर पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स से हम स्मॉलेस्ट निकालते हैं बच्चों. तो ये हो जाएगा 2, 4, 7. फिर एक नंबर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स 4 से. ओके, 4, 2, 7. ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों 2, 7, 4. राइट, और हम ये भी लिख सकते हैं 7, 4, 2. राइट, इस तरीके से हम इन तीनों ही नंबर्स का यूज करके पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं. नाउ राइट ट्रू और फॉल्स स्टूडेंट्स. सॉरी, राइट ए पार्ट इज द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग 2035. अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है बच्चों और सारी डिजिट एक ही बार यूज करनी है. तो ग्रेटेस्ट कहाँ से शुरू होगा? 5 से. 5 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 एंड स्मॉलेस्ट इज है 0. तो ये हो गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. नाउ स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग 9503 ओनली वंस. ओके, तो स्टूडेंट 0 से हम शुरू नहीं करेंगे. 0 से जो जस्ट ग्रेटर होगा उससे शुरू करेंगे और उसके बाद सेकेंड प्लेस ले लेगा 0, देन 5 एंड 9 इज योर आंसर. ओके, नाउ सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स. लेट्स ऐड देम. 7 + 5 इज 12. 2 यहाँ पे 1 कैरी. 4 + 1 + 2 इज 7. 6 + 7 इज 13. 3 यहाँ पे 1 कैरी. 8 + 5 13 + 1 14. तो 1 4 यहाँ पे 1 कैरी. 2 + 1 + 3 इज 6. 8 + 2 इज 10. 0 यहाँ पे 1 कैरी. 3 + 1 + 1 इज 5. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करते हैं. 3 × 6 = 18. 8 यहाँ पे 1 कैरी. 3 × 5 = 15 + 1 16. 3 × 8 स्टूडेंट्स 24. 24 + 1 5. तो यहाँ पे 2 कैरी. उसके बाद 3 × 3 = 9 + 2 11. 11 यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 × 3 + 1 4. सो यहाँ आंसर इज 41,568. नाउ स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इन क्वेश्चंस को. ठीक है, पहले स्टूडेंट्स वी हैव टू ऐड दीज टर्म्स, देन वी हैव टू सबट्रैक्ट द एडिशन टर्म फ्रॉम द नेक्स्ट स्मॉलर नंबर. ओके, सो अब इनको ऐड करते हैं स्टूडेंट्स. तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा 9 + 6 इज 15. 5 यहाँ पे 1 कैरी. 4 + 3 7 + 1 8. 2 + 1 3 एंड 2 एज इट इज. ठीक है, अब इसमें से हमें सबट्रैक्ट करना है 1346 और हमारा ऐसे फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स. लेट्स सबट्रैक्ट इट. ओके, तो आपको कॉलम मेथड से इसे सॉल्व करना है. 2385 - 1346. ठीक है, 5 - 6 बच्चों क्या होगा? नहीं हो सकता, तो हम इसे 15 बनाएंगे. कैरी लेंगे 8 से, इट विल बिकम 7. 15 - 6 9. 7 - 4 3. 3 - 3 0. 2 - 1 1. सो ये आंसर इज स्टूडेंट्स 1039. ओके, और सिंपली ऐसे ही बच्चों आपको बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करने हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन स्टूडेंट्स. ठीक है, कैसे करेंगे आप? 7/8 को कैसे लिखेंगे बच्चों? 7/8. ओके, 8/25 इज 8/25 और ऐसे ही करके आपको बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं. राइट एज मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको डिवीजन से करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले से ऐसे डिवाइड करके देखते हैं. 28 को हमें 5 से डिवाइड करना है. सो 25 आता है 5 पर, माइनस करेंगे 3 आएगा नीचे. तो बच्चों हम इसे एज मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? जो डिनोमिनेटर रहता है बच्चों वो नीचे ही सेम रहेगा डिनोमिनेटर. ठीक है, फिर क्वेश्चन यहाँ पर आएगा 5 5 से 25 + 3 इज 28. ठीक है, इस तरीके से आपको मिक्स फ्रैक्शन बनाने हैं और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. वी हैव टू डू द फिल इन द ब्लैंक ग्रेटर देन या फिर लेस देन साइन पुट करना है. तो बच्चों देखिए कौन सा ग्रेटर होगा? डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा हमारा नंबर होगा. ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है. क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 6 7 क्या होता है बच्चों? सॉरी,
6 9 का क्या होता है बच्चों 54 होता है। सो 6 इंटू 9 इज इक्वल टू 8 इंटू 7, हमें ऐसे पता चल जाएगा कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो दिस इज 54 एंड दिस इज 56। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका आंसर बड़ा आ रहा है, तो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। ओके, नाउ ऐसे ही आपको बाकी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट सिंप्लीफाई करना है हमें, कैसे करेंगे? देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो राइट इट ओनली वंस, और न्यूमरेटर्स को ऐड कर दीजिए, आंसर इज दिस। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसका मतलब यू हैव टू राइट इट वंस, एंड 17 माइनस 14 इज 3, सो योर आंसर इज 3/19। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों करना है, ठीक है। वी हैव टू अरेंज दीज फ्रैक्शंस इनटू अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। कैसे करेंगे बच्चों? आप शुरू करेंगे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन से, ठीक है। 1 2 1/11, उसके बाद आएगा बच्चों 2/11, उसके बाद आई कैन सी 5/11, देन 6/11, एंड यहाँ पे बच्चों जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है वो है 7/11। ओके, अब आते हैं बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर पर। यहाँ पर हमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन से शुरू करना है, तो आई कैन सी दैट स्टूडेंट्स 8/13 इज द लार्जेस्ट, देन 7/13 इससे छोटा है, उससे छोटा स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं 3/13 है, एंड स्मॉलर देन 3/13 इज 2/13, एंड देन स्मॉलेस्ट इज 1/13। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट 10 लाख। कैसे करेंगे बच्चों? आप 10 लाख में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। आपको 10 लाख में से सब्ट्रैक्ट करना है 89,456, तो आपका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नाउ अ ग्रैनरी हैज, कितने बैग्स हैं ग्रैनरी में? 42,759 बैग्स ऑफ व्हीट, 68,073 बैग्स ऑफ राइस, 16,891 बैग्स ऑफ बार्ले। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द ग्रैनरी? यू हैव टू ऐड ऑल दीज नंबर ऑफ बैग्स, और आपको स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। इन तीनों ही नंबर्स को ऐड करिए, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 एंड 8? क्या डिफरेंस है बच्चों प्लेस वैल्यू में? देखिए 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 7,000, 8 की प्लेस वैल्यू बच्चों 80 है। जब इसको माइनस करोगे ना तो आपको आपका फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है? 6,920 इज योर आंसर। ओके, नाउ of two numbers the smaller is 89,796 less than the greater. If the greater number is 9,36,187, find the smaller number. तो बच्चों आप क्या करने वाले हैं? आप 9,36,000 में से माइनस कर देंगे दिस नंबर, ठीक है। तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। नाउ कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट स्टूडेंट्स। देखिए 8,426 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टोमीटर्स एंड हाउ मेनी मीटर्स, ठीक है। ये हमें निकालना है। तो बच्चों हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जब आप स्मॉलर वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू की तरफ जाते हैं तो आप डेसिमल में आंसर देंगे। सो ये आंसर इज 84.26 हेक्टोमीटर। अब बच्चों देखिए 210 ग्राम एंड 124 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना मिलीग्राम में। कैसे करेंगे बच्चों? जब बच्चों हम ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाते हैं तो क्या हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और हमें मिलीग्राम की तरफ जाना है बच्चों, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 210 बाय 1000 so that we can get our value in milligrams. So your answer is students 210,124 milligrams. Okay, next let's simplify this question students. Add करिए 5 plus 9 is 14, 4 यहाँ पे 1 carry, 2 plus 1 3 plus 1 4, 4 plus 6 is 10, 0 यहाँ पे 1 carry, 2 plus 3 is 5 plus 1 is 6. Okay, 60 meter and 44 centimeter is your answer. मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों यहाँ पर 3 2 6, 3 4 12, 3 5 15 plus 1 16, 3 3 9 plus 1 10. Okay, so your answer is 106 meters and 26 centimeters. A bus covers 64 kilometer 250 meter in an hour. How much distance as it cover in 5 hours? So 5 hours में कितना distance cover करेगा students? You have to multiply this distance by 5 hours. Okay, and you will get your final answer. Now construct the angle using protector. Protector का यूज करिए स्टूडेंट्स, और ये आपको खुद करना है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स। तो बच्चों ये भी आपको स्केल की हेल्प से एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, दिस यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ मेजर द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। बच्चों अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस क्या होगा? हाफ ऑफ डायमीटर, दैट मीन्स 3, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। Now convert the following as directed. तो बच्चों हमें 25,562 सेकेंड्स को मिनट्स और सेकेंड में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे बच्चों? 60 से डिवाइड करेंगे इसे, ठीक है।
and you will get your final answer. Let's divide it by 60. यहाँ पर आएगा 244 जा, okay, 1 6 2 again subtracted by 120 2 जा पे आएगा and then here is 42. ठीक है, तो बच्चों आपका आंसर है 42 minutes and 42 seconds. Okay, so your answer is 42 minutes and 42 seconds right here. 42 minutes and 42 seconds. Okay, now similarly you will do. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. 8 years 5 months को months में कन्वर्ट करना है बच्चों. तो 8 को सबसे पहले 12 से मल्टीप्लाई करिए. जब आप 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे 5 months में, you will get the total months. Okay, now अब इसे कैसे करेंगे बच्चों? 8 into 12 plus 5 months. तो 8 into 12 is students 96 plus 5 and your answer is 101 months. Okay, क्योंकि बच्चों 8 years में कितने मंथ्स होंगे? 96 मंथ्स होंगे और यहाँ 5 मंथ्स और दिए हुए, 5 को भी ऐड करिए and your answer is 101 months. Okay, now fill in the blank students. An hour has 60 minutes. 180 seconds has 3 minutes. A day has 24 hours. ठीक है, a second of the month of the year has the second month of a year. यानी कि फरवरी में कितने डेज होते हैं स्टूडेंट्स? 28 भी लिख सकते हैं एंड 28 भी लिखेंगे आप. 29 and 28. Okay, an hour has how many seconds students? 3600 seconds. Okay, so here let's do question number 34. Classify the triangles according to angles. Okay, अब हमें classify करने बच्चों triangles को. So students आप देख सकते हैं one angle is greater than 90 degrees. So this is obtuse angle triangle. Okay, one angle is 90 degrees. So this is right angle triangle students. ठीक है ना? And here you can see that students all the angles are less than 90 degrees. So this is acute angle triangle and fourth part is a homework. Now 35th question is find the circumference of the circles with the following measurement. So students, what is the formula of the circumference? Circumference is equal to 3 into diameter. Okay, तो diameter क्या है बच्चों? 9 है, तो यहाँ पर circumference क्या आ जाएगा? 27. ठीक है, रेडियस 6 है, रेडियस 6 का डबल क्या होता है स्टूडेंट्स? 12. सो 12 into 3 is equal to 36 आपका circumference यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल और आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरह समझ आए होंगे बच्चों. अगर नहीं आते हैं तो जितने भी डाउट्स रह गए हैं, आस्क टू योर टीचर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद आवर न्यू चैप्टर. टिल देन स्टूडेंट्स कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. ओके.